हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉलॉइड्स एंड देयर एप्लीकेशन। देयर आर अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कोएगुलेशन ऑफ कॉलॉइड्स एंड a number of applications of colloids are there. Sky appears blue. This is because of colloids. Milk is another example of colloid. Emulsion paints are there. So if we see all around us smoke, that is clouds, all are colloids. So in this video we are considering the important aspects of colloids and coagulation of colloids, in which one very basic important coagulation of colloid example is this is Cottrell smoke precipitator. Cottrell smoke precipitator, or we can say electrical precipitation of smoke. We have seen smoke. This is one type of colloid. Carbon particles present in air. Carbon particle, this is solid, and air is gas. So aerosols are there. Smoke is an example of aerosol, and we have seen a number of methods of coagulation of colloid, और उसमें एक हम लोगों ने दिया है, that is electrophoresis. Colloid, any example of colloid, if we see, that is particle of colloid is having either positive or negative charge on it. So in Cottrell smoke precipitator, what we have to do, the particles which are coming in contact with, this is the charge particle electrical plates and gets precipitated. मतलब जो स्मोक होता है, इस स्मोक को यहाँ से इस कॉट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर में अंदर पास करते हैं, एंड देयर इज टू इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर देयर. दोनों प्लेट्स वहाँ लगा है. स्मोक, इफ इट इज हैविंग पॉजिटिवली चार्ज ऑन देम, दैट विल बी कोएगुलेटेड, दैट विल बी प्रेसिपिटेटेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी देयर. So particle can be easily coagulated, और smoke जितना भी होगा that will be settled down. Particles of carbon particle will settle down and air will be coming out from the chimney. So this Cottrell smoke precipitator is normally used in industries, जहाँ पॉल्यूशन को कम करने के लिए कार्बन के पार्टिकल को सेटल करवा दिया जाता है. Okay. Another example, that is application of colloid in medicine. Why colloidal medicines are most effective? Colloidal medicines ज़्यादा effective क्यों होती है? Because of their surface area. See, colloidal medicines are more effective because they have large surface area and therefore gets easily assimilated. अगर मान लीजिए मेडिसिन्स को कॉलॉइड्स की फॉर्म में लिया जाता है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो वो बॉडी में इजीली डिस्पर्स हो सकती है, एंड दैट विल बी मोर इफेक्टिव. अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कॉलॉइड्स आर देयर. सी नंबर फर्स्ट, दैट इज मोस्ट ऑफ द मेडिसिन इन कॉलॉइडल इन नेचर. फॉर एग्जांपल अर्गाइरोल इज अ सिल्वर सोल यूज्ड एज एन आई लोशन. आँखों को वॉश करने के लिए एक कोलॉइडल सस्पेंशन दिया जाता है, विच इज कॉल्ड अर्गाइरोल. कोलॉइडल एंटीमनी इज यूज्ड इन क्यूरिंग कालाजार. कालाजार एक पर्टिकुलर डिजीज होता है, उसमें कोलॉइडल सोल ऑफ एंटीमनी इज गिवन. नंबर थर्ड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, सी अनदर एग्जाम्पल, दैट इज कोलॉइडल गोल्ड. दिस इज कोलॉइडल गोल्ड इज यूज्ड इन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस. इंजेक्शंस वगैरह देने के लिए कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड इज यूज्ड. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव सीन, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एन इमल्शन यूज्ड इन स्टमक डिसऑर्डर्स. आप लोगों ने देखा हो, जब स्टमक डिसऑर्डर होता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, stomach में that is hyper acidity is there, and because of that a burning sensation in stomach is there. Then in that condition doctor will prescribe you the Diegene, Diegane. Diegene,
ये डाइजीन क्या है? पिंक कलर की एक बॉटल आती है, पिंक कलर का एक इमल्शन आता है, दैट इज डाइजीन. डाइजीन इज नथिंग जस्ट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इन इट, and this milk of magnesia is an emulsion of magnesium hydroxide. So if we see another example of coagulation of colloid is tanning. ये tanning process क्या होता है? बेल्ट, पर्स, ये जो चमड़े के आइटम बनते हैं, क्लियर, इनको एक पर्टिकुलर प्रोसेस टैनिंग किया जाता है, एंड दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड टैनिंग. अब ये टैनिंग है क्या? सी, एनिमल हाइड्स आर कोलॉइडल इन नेचर. जो एनिमल्स की हाइड होती है, जो चमड़ा होता है, वो कोलॉइडल नेचर का होता है. When a hide which is having positively charged particle is soaked in tannin, one particular solution of tannin is there which contains negatively charged colloidal particle. Animal hide is having positive charge, tannin is having negative charge. So what will happen? Coagulation of colloid. और जब कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइड होगा तो दैट विल बी अंडरगोइंग प्रेसिपिटेशन. आपका जो कोलॉइडल पार्टिकल होगा दैट विल सेटल डाउन, एंड ड्यू टू द म्यूचुअल कोएगुलेशन दिस रिजल्ट्स इनटू द हार्डनिंग ऑफ लेदर. ये जो लेदर होता है, जो एनिमल हाइड होता है, दैट विल बिकम हार्ड, एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज टैनिंग. क्रोमियम सॉल्ट्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ टैनिन. कभी कभी टैनिन की जगह पे क्रोमियम के सॉल्ट्स का भी यूज किया जाता है. सो एनिमल हाइड्स जो हार्ड नेचर की होती है, उसको डिफरेंट यूजेस में कन्वर्ट करने के लिए उसको पर्टिकुलर टैनिन सॉल्यूशन में से पास करवाते हैं. ड्यू टू दैट कोएगुलेशन ऑफ colloidal particles present in animal hide will be done, and the process will be called tanning. If we see one more application of colloid, that is photographic plates. Photographic plates. See, photographic plates or films are prepared by coating of an emulsion of light sensitive silver bromide over the celluloid film. So photographic plates में जैसे अभी तो डिजिटल कैमरास आर देयर, अदरवाइज पहले जब रोल की फॉर्म में फोटो निकाले जाते थे, एक नेगेटिव फिल्म बनती थी. उस नेगेटिव फिल्म से फोटोज लेने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता था. वन ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन वी विल यूज फॉर द प्रिंटिंग ऑफ फोटोग्राफ्स देयर, फोटोग्राफिक प्लेट्स. सी अनदर एग्जांपल ऑफ कोलॉइड्स की मैं बात करूं, दैट इज आर्टिफिशियल रेनिंग. ऐसे एरिया जहां रेन नहीं हो पाती, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती, उस पर्टिकुलर एरिया में बारिश आर्टिफिशियली करवाई जाती है. नाउ हाउ इट इज डन, दैट इज द बिग क्वेश्चन मार्क. Just we have to use the coagulation of colloid. We have seen clouds are the aerosols. Clouds क्या हैं? Aerosols हैं, ठीक है, and aerosol is one of the colloid. Water vapors, water droplets which are very minute in size are present in air, one type of colloid. तो उन clouds के ऊपर salts का spray किया जाता है, and salts are having both charge. एक केटायन होता है having positive charge, और उसी salt में एक एनायन होता है that will be having negative charge. Positive charge of electrolyte or salt will neutralize the charge of aerosol particles, or negative charge of the electrolyte will also neutralize the positive charge of aerosol present in the clouds. सो दोनों ही कंडीशन में अगर आप सॉल्ट स्प्रे करते हैं तो जो एरोसोल के पार्टिकल्स होगा उनका कोएगुलेशन होगा, एंड ड्यू टू द कोएगुलेशन द साइज ऑफ द वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट्स इंक्रीजेस, और दैट आफ्टर पर्टिकुलर साइज दैट विल कम डाउन टू द बॉटम ऑफ द अर्थ पे आ जाता है, एंड रेनिंग इज डन. सो इन दिस वीडियो वी हैव सीन द एप्लीकेशन ऑफ colloids. That's all for today. Thank you all. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you all.